और माँ को भी था ये पता कि कपड़ों पे हंसते बड़ा थे रईस ज़ादे। पापा देखे घर करे, माँ का काम, माँ बनी पापा पूरी तनख्वाह से मेरी फीस डाले। इनिशियल डेज में जब मैं हार्डकोर रैप करता था ना, तो लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई तू। लोग जैसे बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड में तुम अंडरग्राउंड में अब आए हो, हम अंडरग्राउंड पहले से कर रहे हैं। अरे जब अंडरग्राउंड नहीं था तब हम अंडरग्राउंड में थे। Welcome to the Bombay Journey, Raftar. How's quarantine? Ladies and gentlemen, नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार। I'm really excited to do this off a virtual screen. Happy quarantine. How have you been? Hey, बिल्कुल social distancing, bro. Quarantine is fine, bro. Like, I hope people come out of it really soon, and you know all this problems that we are facing eradicates, it erases of itself. अभी के लिए सिंपल ऐसा प्लान है कि ये समय सीखने का समय है ना। एक तो ये सीखो कि हमने क्या क्या नुकसान किया है नेचर का, उसके अलावा जो जो इतना टाइम में हम अपने आप को सिखा नहीं पाए थे, लाइक आई हैव जॉइंड सम कपल ऑफ मास्टर क्लासेस एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर टेक्निकल साइड्स ऑफ द म्यूजिक, है ना। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू, रादर देन बीइंग अफ्रेड, टेंशन लेने से अच्छा ये है कि आप लोग कुछ सीखो, किसी चीज, किसी पॉजिटिव चीज में अपना टेंशन डालो। I mean, I cannot believe that we have come to a point where we're accepting to live this life. I mean, we have no idea how long this is going to be at this point. And Oh, well, this was क्या कहते हैं, human nature's most wanted wish. People wanted to run on streets killing zombies, right? Well, you have it right here. Like the joke says, the gamers have been waiting for this day. But you never know how hard it's gonna hit, right? Like it's fun when you say about all this, when you look at those apocalypse movies, you know, when all that happens in movies like Mad Max, it feels very that it's never gonna happen. It feels that this is just somebody's visualization, but here you are. I am really excited about your new album, Mr. Nair. Thank you, my brother. Thank you. How do you come up with 16 songs at once? And why would you do that? You're giving us so much to live with. Brother, I'm giving you more reasons to stay home. Right? And that is the point. And other thing, bro, nobody noticed this and nobody realizes this is the perfect time for a musician who depends on his lyrics a lot. You know, like me, I'm not just an entertainer. I'm somebody who likes to write his own stuff and craft that entire project in my own vision, right? अभी लोग बैठ के सुन नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं, and that is the reason people could listen to all the 16 tracks and understand how they are different and how the lyrics on each song are different, right? So अभी attention span is more, क्योंकि इस बारी सिर्फ मैंने एज अ रैपर अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है, मैंने काफी बीट्स प्रोड्यूस करी हैं, काफी मिक्सिंग पे बैठा हूं मैं साथ में, डायरेक्शन बहुत ज्यादा करी है, लिखने का काम किया है। इनफैक्ट जैसे मेरे साथ जो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि यार ये वाला स्टाइल ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी बहुत ओपन थे इस आइडियाज को। Like everybody let me, you know, hold it down because it's my album, and that is why I loved it, and people were also very supportive. तो वो सब मिला के 27 गाने बने थे, जिसमें से 16 मैंने आपको दे दिए हैं। अभी बहुत कुछ है देने को भाई, घर से निकलने नहीं दूंगा, सेफ रखूंगा आपको। I think that's all we need. Costumes में भी हाथ रहा है. I think the Malayali boy in you has come. अरे of course, that was my idea. वो दिखाना जरूरी था यार, मतलब लोगों को, मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैं गोल्ड वगैरह जो पहनता हूँ, that is because it's a rapper's thing. They don't know Malayalis have been doing it from way back. Yeah, I mean, if you go down south, you'll realize that there's silk shops, and then there's these apparels that you get. It's just gold, silk, electronics, utensils. That's it. That's about it. So Dylan Nair, where does the personality trait shift to Raftar, and where does Dylan stop? What is the game over there? ब्रो, इसमें कुछ शिफ्ट नहीं है, दिलन ही रफ्तार है अपना। कोई ऐसा वो साइकोलॉजिकली मेरा एक सेकंड पर्सनालिटी, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। मेरे लिए डिफरेंस इतना सिंपल है कि जब मैं रोड पे होता हूँ, इफ आई एम एनीवेयर एंड इफ समबडी कॉल्स दिलन फ्रॉम समवेयर, आई विल पे अटेंशन। कोई रफ्तार चिल्लाता है तो कोशिश आप यही करते हो कि सीधे सीधे आप निकल जाओ, यू नो। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, कि अपनों को पता है कि ये दिलन है। That's about it, यार। दिलन अगर सपने नहीं देखता, if Dylan wouldn't have planned, there wouldn't have been no Max, no Raftar. When did Dylan come to Bombay, and then when did you feel that you had arrived? कभी लगा कि हाँ भाई अब हो गया, I think I've made it, and tell me about the first day you arrived into Bombay. देखो, अगर किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा फील होता है ना कि अब हो गया, तो वो अनफेयर है। आपकी आर्ट के लिए अनफेयर है, और उन लोगों के लिए अनफेयर है जो आपको देख के प्रॉब्ली घर पे बैठ के सीख रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। सो मेरा ये है कि मैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूं, मुझे लगता है यार ये अचीव हो गया ना, तो मतलब और ऊपर आप कुछ गोल सेट कर सकते हैं।
सही बात। बॉम्बे में फर्स्ट टाइम आया था डीआईडी के लिए ब्रो, डांस इंडिया डांस का ऑडिशन मैंने दिल्ली में दिया था, मैं सेलेक्ट हो गया था। सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे मेगा ऑडिशंस देने गया था, उसमें भी सेलेक्ट हो गया, फिर डीआईडी के लिए रुका। जब डीआईडी खत्म हो गया उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बन गए जो डीआईडी में जितना भी आप म्यूजिक सुनोगे डांस इंडिया डांस में वो काफी मिक्सचर सा होता है, इट्स लाइक अ रीमिक्स और अ रीटेक ऑन एनी सॉन्ग यू लाइक। वो मेरे दोस्त बन गए, उसमें से नीलेश एक बहुत अच्छा दोस्त था, उससे यारी दोस्ती रही। तो जब मैं वापस गया तो आई वाज स्टिल डांसिंग एंड टीचिंग बट आई वांटेड टू डू म्यूजिक। तो जब भी मुझको वो थोड़ा सा समय मिलता था, और अमूमन उस समय पे मेरी गर्लफ्रेंड भी बॉम्बे में से थी यार, सो आई हैड टू रीजंस टू कम डाउन, to meet people and make music and to meet her, and their family has been so good to me कि क्या कहते हैं, मैं जब बॉम्बे आया करता था इनिशियली 2-3 साल, तो उन्होंने मेरे को अपने घर पे रखा है कि तू कहाँ इधर उधर जाता रहता है, यू स्टे हियर। क्योंकि इनिशियली जब बॉम्बे आया तो या तो नीलेश के वहां पे उसके स्टूडियो में, स्टूडियो एज इन वो भी किसी के यहाँ पे काम करता था, उसको एक छोटा सा स्टूडियो बना रखा था, उसी में उसका पीसी और पीछे सोफा। तो कभी मैं सोफे पे ऊपर सो रहा हूँ, कभी वो नीचे सो रहा है, या वाइस वर्सा। फिर धीरे धीरे एक मिंकू भैया करके थे जो टीआईडी में हमारे कोच थे, राजीव सुरती सर, उनके वो असिस्टेंट थे। वो 7 बंगलौज में रहते थे, तब मैंने पहली बार देखा था चाल क्या होती है। वो जो वो टिन में से पानी गिरता है, गद्दे नम होते हैं, वो मैंने पहली बार देखा था कि इंसान घर के बाहर से चल के जाने वाला इंसान को खिड़की के अंदर से सब दिख रहा है कि घर में क्या है। और वो जो किचन के आगे इतना सा एक, सिर्फ इतना सा एक गेट होता है खुला हुआ, जिसमें से बाहर से कोई भी देख सकता है, वो इतना सा द्वार, वहां पे मैं रुका था। उस टाइम पे जो फीलिंग आई थी ना वो बहुत बढ़िया थी उस टाइम अंदर से, क्योंकि हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं और लगता था यार अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ सही होगा। और उसी गलतफहमी में बहुत अच्छे लोग भी मिलते रहे और ये सफर चलता रहा, एंड बॉम्बे हैज प्लेड लाइक अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ। अब तो आपको समझ ही गया होगा। आई थिंक सबके लिए जो बॉम्बे आते हैं उनके लिए घर वो होता ही है जहां पहली बार किसी के यहाँ रुके हैं। यू हैव एक्स नंबर ऑफ पीपल टू थैंक, मतलब एक्स नंबर ऑफ पीपल, एंड और बेस्ट बात तभी रहती है जब वो लोग आज भी आपके दोस्त हों। Exactly. That is when it is fun. Yeah. There is. I mean, that's the thing. You collect people in Mumbai. आप कुछ और नहीं कर रहे होते, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हो, और कहीं ना कहीं उनके लहजे से आई थिंक लिरिक्स भी उठा लेते हो आप, because creative people are always looking for ideas. You know what I mean, right? देखो ये बहुत एक सही बात है कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वही हमारे लिरिक्स है। हम जो देखते हैं हम वही फील करते हैं और लिखते हैं, पर उसके अलावा इट इज नॉट जस्ट व्हाट समवन ऑब्जर्व्स, यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर एज वेल। कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे गाने या ऐसे थॉट्स आते हैं जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आपने वो फेस किया है, पर आपको पता है कि वो जब सिचुएशन अराइव होती है तो सामने वाले को क्या फील होता है। तो यू हैव टू नॉट जस्ट बी प्रीची। आप हमेशा प्रीच करते रहोगे ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो लोग कहेंगे यार इसके बोल बच्चन चालू रहते हैं। वो नहीं, यू हैव टू वीव इट इन अ स्टोरी, और वो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बारी मेरा बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था कि यार देखो, वही टाइपकास्ट वाली बात जो हमने जिससे शुरुआत की थी कि टाइपकास्ट नहीं होना है भाई, और बहुत कुछ है कहने के लिए। तो फन भी किया, मेरे लाइफ में फन का फेज भी था यार। एक जमाने में मेरे को इश्क भी हुआ था और बहुत गहरे तरीके से हुआ था। तो उस जमाने में मेरा जो माइंडसेट था, उस टाइम पे वो स्किल्स नहीं थी कि मैं उस तरीके से बयां कर सकूं, है ना। पर आज है, तो अब क्या देरी है, एटलीस्ट कर देता हूं मैं, नहीं तो कोई जवान दिल मेरे साथ जुड़ के उससे कनेक्ट हो गया, वो अपनी कहानी समझेगा। सो दैट इज व्हाट यू, इट्स नॉट अबाउट टेलिंग योर स्टोरी, इट इज अबाउट हाउ यू मेक पीपल कनेक्ट टू योर स्टोरी, कि उनको लगे कि उनकी कहानी है। जैसे जो प्राउड गाना है, प्राउड गाने में बोलता हूँ, जागा रहा ताकि काली रात साथ छोड़े, मेरे बादली के भाई मेरे साथ दौड़े, करे भूल बेटा किसी पे भी हाथ छोड़े, दिल रोया जब माँ ने स्कूल आके हाथ जोड़े। और ये मेरे साथ नहीं है, बहुतों के साथ होगा। मैं बहुत शैतान था यार, मेरे साथ ना रेसिज्म, क्लासिज्म, ये सब बहुत होता था। फैमिली बैकग्राउंड, ऊपर से मलयाली को मद्रासी बोलते थे, मैं वैसे ही चढ़ जाता था। दब के तो आएगा नहीं, क्योंकि पापा मम्मी ने ये भी सिखाया कि बेटा अगर कोई दबा रहा है तो दबना नहीं है, पिट के बेशक आ जाइए घर पे, पर मार खा के ये मत आके बोलियो कि मम्मी मेरे को डर लग रहा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस योरसेल्फ बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ क्रूअल प्लेस। वो उन्होंने सिखाया। तो वही वाला किस्सा यार कि मतलब ये बुलिंग होती थी, तो मैं ना सॉर्ट ऑफ एक एंटी बुली बन गया। वही कार्टून वार्टून देख के अपना ऐसा हो गया कि मैं और कुछ दोस्तों का ग्रुप, 5वीं 6ठी के बच्चे, हमने प्लान बना रखा है पूरा कि हमें कोई बुली करेगा तो हम सब मिलके उसको मारेंगे, और हमने करना चालू कर दिया था।
पर उसकी वजह से ना मम्मी को स्कूल बुलाते थे। मेरी मम्मी की ड्यूटी थी कि हर सैटरडे को आके वो प्रिंसिपल को मिलके जाएगी। मेरी हर सैटरडे की पीटीएम थी, वो आती थी और उसके बाद उनको सारा मेरा रिजल्ट मिलता था, खाता, और हर सैटरडे को आके मम्मी को हाथ जोड़ना पड़ता था कि नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये भी मैंने गाने में बोला है कि और माँ को भी था ये पता कि कपड़ों पे हंसते बड़ा थे रईस ज़ादे, पापा देखे घर करे माँ का काम, माँ बनी पापा पूरी तनख्वाह से मेरी फीस डाले। अब इसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं था कि पापा कमा नहीं रहे थे, पापा नौकरी पे जाते थे, वहां से 5-6 बजे उनका वापस आना होता था। मॉम 8 बजे पहुंचती थी क्योंकि वो बहुत दूर जाती थी। पापा आते थे, बीइंग द मैन ही इज, ही वुड पिक अप द झाड़ू, बर्तन, सब कुछ सेट करके साफ होके मम्मी घर आती थी, सिर्फ खाना बनाना होता था, सिर्फ खाना बनाना होता था मेरी मम्मी को। तो वो पापा ने मॉम का कितना साथ दिया, वो सब जो ये मिलन है ना, पूरा पैसा मम्मी की सैलरी में से मेरी फीस थी सिर्फ स्कूल की। मेरी मम्मी की पूरी सैलरी एज इट इज मेरी ट्यूशन और फीस थी। दैट इज व्हाई द एल्बम इज आल्सो नेम्ड नायर, टू गिव थैंक्स बैक टू माय पीपल हु मेड मी हु आई एम इन बिलीविंग इन यूथ आइकन बोल दिए गए हो, और मेरे ख्याल से that's a great feeling, man. I think congratulations on that. But how do you and a lot of responsibility. हाँ, क्योंकि and a lot of responsibility. How do you देखो अंकल पार्कर ने सिखाया था, अंकल पीटर पार्कर के जो अंकल जो थे बेन पार्कर, उन्होंने सिखाया था विद एवरी पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज सिखाई थी ये कैरेक्टर। मैं देखो आई एम वेरी मच अ वेरी कार्टून एनीमे ऐसी चीजों से बहुत फैसिनेटेड बंदा, और वहीं से सीखा है, अपने जीने का तरीका भी वहीं से है। तो जैसे अंकल पार्कर बोल गए थे वो बहुत बढ़िया बात थी। और दूसरी बात जो जोकर ने बोल गया था, नेवर डू एनीथिंग यू आर गुड एट फॉर फ्री, ये दो बातें मैं दिल पे, हाँ ये दो बातें मैं सीख के बैठ गया था कि बहुत जरूरी है। और ये जो दो बातें है ना, इसी पे मैं बस ध्यान देता हूँ। और वही है कि हाँ बच्चे बोलते हैं आइकन है सब कुछ है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश भी यही करते हैं कि सारी चीजें वही हो पाए जिससे सामने वाले पे कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, I have a lot of fun, bro. I have friends. We drink and we have fun. You know what I mean, right? But I never put it out on social media. If I'm out at a party with friends, अगर हम उस क्लब में भी फोटो खिंचाएंगे तो I will make sure कि किसी के हाथ में कोई आपको सब्सटेंस ना दिखे, कोई दारू की बोतल ना दिखे, कुछ ना दिखे, है ना। क्योंकि होता क्या है कि मैं बेशक नहीं भी कर रहा हूं, पर मेरे साथ में किसी को देख के लोग सोचेंगे कि ये रफ्तार इस सर्कल में रहता है और एक रैपर बनने के लिए शायद ये सब करना बहुत जरूरी है, मेरे को भी कूल बनना है, मैं भी ये करूंगा। तो उसमें दो चीज, एक तो अपनी इमेज के साथ, और दूसरा वो गलत इमेज खुद की बनाने के चक्कर में आप सामने वाले को बोल देते कि यही सही रास्ता है, आपको ऐसा बनना है। तो वो चीजें मैं अवॉइड करता हूं। तो दिस इज, ये कुछ चीजें जो आपके पास आती है, अगर आपको कोई आइकॉन समझ रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि भाई मैं आपसे सीख रहा हूं, तो आपको बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए। Tell me about that point where there was a food item that you remember that kept you going through the day. इस बात पे मैं ना अपना बेस्ट फ्रेंड है मेरा निमित, उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा बहुत दिल से। मुझे याद है हम दिल्ली में जब किराए पे रहना स्टार्ट किया था मैंने और उसने मिलके ना, बिल्कुल बॉम्बे दोबारा आने से पहले की बातचीत है। पैसे वैसे इतने होते नहीं थे जेब में, और अब बोलते टाइम ना खुद ही ऐसे हंसी आती है कि यार वो भी एक दिन थे। भाई वो रोज सुबह उठ के जाता था और प्लेट में ना 5 रुपए का पराठा आता था, एक पराठा 5 रुपए का, ऐसे 2 पराठे लेके आता था, उसके बीच में मिर्च रखी होती थी, और वो मुझे उठा के बोल के जाता था कि खा लियो। इनफैक्ट दैट गाय, सुबह वो ऑफिस जा रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है मेरे वॉलेट में तो निकाल के ले जाएगा, अगर मेरे पास नहीं है तो पैसे रख के चले जाएगा। और मैं घर पे बैठ के म्यूजिक बना रहा हूँ कि मेरे को घोस्ट प्रोडक्शन करनी है किसी और के लिए, क्योंकि अपना पैसे कमाने का तरीका उस टाइम पे यही था। घोस्ट प्रोडक्शन किया, घोस्ट लिरिक्स लिखे, और फिर कुछ लोग, ये 2013-12 की बात है जब मैं बस जुड़ रहा था मैंचपाजी से, तो मैं कैसे सर्वाइव करता था। तो वो सब करना है, उस टाइम पे प्रॉब्लम भी आ रही है। तो भाई वो पराठे जो थे ना 5 रुपए वाले, एक तो वो बनाने वाला जो भी था और एक मेरा भाई खिलाने वाला। Tell me this, I'm sure अब क्योंकि आप एक पड़ाव तक पहुंच गए हैं, ऐसा होता होगा कि यार कुछ दिन बीट ही नहीं बैठ रही, मतलब यार you're not just getting the pace, something's not working, you're not, so is there a Bombay place that you go to जहां आप जाके बस बैठ जाते हो या घर पे ही चिल करते हो, घर का कोई ऐसा स्पॉट? Do you have a place? इम्बिस मेरे भाई, इट्स अ डाइनिंग प्लेस, इतना छोटा सा, अरे उसमें 4 ही कुर्सियां हैं टोटल, उसमें 4 ही, बैठ भी नहीं सकते सही से। हाँ बैठ ही नहीं सकते वो, मतलब इट टेक्स यू बैक टू द डेज कि यार इतना होता था, फिर भी मजे में खाते थे और काम करते थे। तो आई लव दैट प्लेस। गोइंग बैक टू एम्बेस इज लाइक, इतने से एरिया के अंदर कैसे आप खुश रह सकते हो। द बर्गर्स आर टू डाई फॉर भाई, द बर्गर्स एंड द विंग्स। मैं जाता हूँ, एक बर्गर एक विंग, और उनके पास है ना एक वो जलजीरा वाला एक वो रहता है, जलजीरा सोडा और समथिंग, रिमझिम करेक्ट। हाँ बस ये 3 चीजों का कॉम्बो, हो भाई मत याद दिलाओ,
प्रभु लॉकडाउन पे सैंडविच खा रहे हैं बर्तन मांजते हुए, ऐसा ना करो. I know people know you as Raftaar now, but there are studios, there are people, and is there a specific journey that you remember कि हाँ भाई दिल्ली से यहाँ आए फिर ये हुआ और इस मूवमेंट ने मुझे चेंज किया? ब्रदर, मैं जब इनिशियली बॉम्बे आया करता था ना, तो टिकट एकदम जल्दी से बुक नहीं होती थी. पापा रेलवेज में थे और पापा इतनी पोजीशन पे नहीं थे कि एकदम सेटिंग बिठा के बोल दें कि ये तेरी कुर्सी सेट हो गई है, तू आराम से जा. पर पापा स्टाफ के साथ बहुत प्यार था. लाइक सब मेरे पापा को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं. जितनी भी पेंट्री होती थी ना, जहाँ पे पेंट्री में बैठने की खाना बनता है, वहां पे एक स्टाफ का छोटा सा एक रूम होता है. टॉयलेट जितने स्पेस में वो एक रूम बना देते हैं उनका. मैं वहां पे बैठ के आया करता था. तो उस क्या कहते हैं, बोगी में बैठ के आना. उसके अलावा पेंट्री में से ही अगर खाना कुछ स्पेशल बन रहा है, कुछ फ्राई हो रहा है, तो मेरे पास पहले पहुंच जाता था. तो अब तुम समझ रहे हो कि इतना परेशानी से जा रहे हैं, पर सेवा पैसे देने वालों से ज्यादा हो रही है. तो मेरी लाइफ में ना हमेशा ये दो चीजें हमेशा ऐसी रही है. एक जगह पे अगर परेशानी होती थी ना, तो किसी ना किसी तरीके से मेरा काम निकल ही जाता था. Like life, to be really honest, the only time I felt a little scared in my life was when I had to restart my journey again, all over again. तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था कि यार अब शुरू से कैसे करेंगे. The hip hop industry is constantly evolving, and you've been there. There's enough and more controversies that keep happening. How do you handle people who bring certain negativity around you? And those people have brought some negativity around again, which I don't like at all. Bro, see, मैंने गाना निकाला था, वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे बढ़ता चला गया, मैं आगे चलता चला गया. एंड दैट इज, उस वीडियो में मैंने यही दिखाने की कोशिश करी थी कि नो मैटर हाउ मच नेगेटिविटी, एनिमिटी, कोई कुछ भी दिखाए, इट डजंट अफेक्ट मी. बिकॉज मेरा पहला फोकस क्या था कि मेरे को अपने आप को एज एन आर्टिस्ट सस्टेन करना है और अपनी बातें बोलनी है. और उनकी गलती भी नहीं है यार. पीपल एंजॉय दैट, क्योंकि लोगों को, कईयों को सिर्फ ड्रामा चाहिए, उनको फैक्ट्स नहीं चाहिए. जब तक लोगों को फैक्ट्स नहीं चाहिए, तब तक ऐसे जितने भी और लोग हैं वो मजे लेते रहेंगे और हम लोग मजे देते रहेंगे. Even if I lie, you know you are going to get hate. Correct. You will definitely get hate. और लोग समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये बात कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई. और जब तक लोग समझेंगे, तब तक डैमेज विल बी डन. You know, this part of it is what I hate. I really like all of you guys who have been certainly pioneers for me, you know, Raftaar. And this is genuine praise from the heart, boss. कि it is hard when you're paving the way. मतलब आप बुलडोजर लेके निकले थे ना, ये बाकी लोग तो भाग रहे हैं उसके अंदर ही. ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है कि ये पूरा जो सब कुछ क्रिएट हुआ है इस टाइम पे, ये क्रिएट करने में कितने लोगों ने मेहनत करी है. और कितनी इनिशियल डेज में जब मैं हार्डकोर रैप करता था ना, तो लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई तू. ऐसे लोग भी मिले मुझे कि ये तो बस एक बीट पे कुछ कुछ बोलता रहता है. फिर धीरे धीरे ना वो वाले लोग, ओल्ड लोग गए, मेरी एज के थे या मुझसे बड़े थे, वो हो गए. अब आ गया नई जनरेशन, जिन्होंने सब कुछ इवॉल्व होते हुए देखा, वो उनकी लाइफ का पार्ट बन गया. तो वो पूरा पाथ क्रिएट करने में हमें कितना टाइम लगा है. दिस इज समथिंग यू आर राइट, पीपल डोंट रियलाइज दैट. करेक्ट. क्योंकि इतना आवाज होता रहता है आसपास. हाउ डू यू समहाउ कीप ट्रोल्स दिस away? Like how do you keep away from this? How do you shut the noise? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ब्रो. पता है होता क्या, कि अगर आप डिफेंस मोड पे जाओगे ना, तो वो और लड़ेंगे. क्योंकि लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि वो लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए लड़ रहे हैं. वो अपने आप को इसलिए सही ठहराना चाहते हैं बिकॉज वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिफेंड करते हैं. और ये ना हम बचपन से सीखते हैं. जैसे ट्रम्प कार्ड जब खेलते थे हम, कि मेरे में 28 बाइसेप्स निकला, हाँ तेरा तो 26 निकला. भाई हालांकि 28 बाइसेप भी बहुत होता है और 26 भी बहुत होता है. मेरे वाले का चेस्ट 54 है, चल तेरा तो 34 है, पतला है ना. कि मतलब अपना आ गया वो जायंट गोंजालेस आ गया तो हाइट में कोई नहीं हरा सकता. योकोजुना आ गया तो वेट में कोई नहीं हरा सकता. तो ये वो वाली लड़ाई है. तो इस चीज का लड़ने का फायदा ही नहीं है. बिकॉज आज मैं जिसको समझाऊंगा, उसके बाद एक नई पीढ़ी आ जाएगी, यू नो, और उनको दोबारा से पूरा अगर समझाने जाएंगे कि देखो बेटा, आपको ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं है, आपको एक्चुअली हम ज्यादा पसंद है, या हम इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो ज्यादा पसंद है. ये लॉजिक नहीं समझ आता लोगों को. पर जिसको समझ आ गया ना, उनके जीवन में है पीस. Tell me something about words that you find peculiar here in Bombay, जो आपको रह गए हैं ज़हन में. Bro, when Bantai Vachi Bamai, first 3 words that I learned when I came to Bombay was this. क्योंकि आपस में लोग एक दूसरे को बुलाते थे, तो मेरे को लगता था इसको बच्ची इसलिए बोलते हैं कि शायद ये थोड़ा लड़की की तरह एक्ट करता है. क्योंकि पाकिस्तान कराची में, जो मतलब कराची कह रहा हूँ, ऑल ऑफ पाकिस्तान, बच्ची का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, या बच्ची का मतलब होता है लड़की. करेक्ट. तो आई यूज्ड टू गेट रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट. और दूसरा स्लैंग कौन सा है? वटले. वटले वटले ऐसे अंदर से निकलता है. वटले
वो अभी तेरा उसमें काम बड़ी हो गया। फीलिंग, अभी तू वटिंग खोपचा, घेउंटाक, ये सब जो है ना, इसमें एक देखा वो गिरता है, घेउंटाक ऐसे करके टक करके लगता है. I really wish वो पेज रहता जहां पर आप you used to talk like the underground hip hop scene in US. where you guys यार were all chatting. इंस्टिग्निया बैटल, रैप बैटल एक रैप बैटल था, इंडियन रैप बैटल, देयर वाज इंसिग्निया. सिर्फ एक रैप बैटल नाम से भी था, एक इंडियन रैप बैटल नाम से था, एक इंडियन रैपर्स नाम, देयर वर अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज, बहुत लोगों ने बनाई थी. पर उस टाइम से जानता हूं इन लोगों को, ईपीआर, ब्रदरवी, स्मोकी, ये सबको मैं उस टाइम से जानता हूं, बिकॉज हम एक दूसरे का नाम पढ़ते रहते थे. ब्रो देखो पता है क्या है, लोग जैसे बोलते हैं ना अंडरग्राउंड में, तुम अंडरग्राउंड में अब आए हो, हम अंडरग्राउंड पहले से कर रहे हैं. अरे जब अंडरग्राउंड नहीं था तब हम अंडरग्राउंड में थे. लिटरली फ्रॉम ऑर्कुट, like not just me, a lot of people like me of that time, that era, are the reason underground was formed there. बनना आज भी था, पर हमने पहले कर दिया तो हम आपसे पहले आ गए. I'm so sorry. Bhai, it's been great talking to you. How did you like the Bombay It's been journey? amazing talking to you in front of the camera and especially behind the camera. मेरे भाई, जनता को पता भी तो चले अपन दोस्त बन गए अब. सही बात है. नहीं, that's the thing about discussing journeys. I think somewhere when we talk about our struggling days, we remember the time when we were way more humble. We wanted somebody to listen to us. मतलब एक सुन लो भाई, एक ये लेके आया हूँ, प्लीज देख लीजिए. 100% man. So I think that's what's the beauty behind doing the Bombay journey for me, at least. Whenever I discuss, छोटे से घर में रहे हैं, किसी ने मदद कर दी. So it's an ode thanking all the people also, to those who believed in us at a point when हम नाम नहीं थे. 100%. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम पे विश्वास किया. और तेरे को भाई ये वर्चुअल झप्पी, ये वर्चुअल झप्पी भाई, वर्चुअल झप्पी. चलिए, thank you Raftar. I'm going to stop recording now. This is us on the Mashable Bombay journey.